Hello everyone. In previous session we started new chapter number 7. We seen types of tissue, right? And started epithelial tissue. Now we will move on our next topic. The topic name is types of epithelial tissue. There are two types of epithelial tissue: simple epithelium and compound epithelium, right? Simple epithelium is composed of a single layer of cell and function as a lining for body cavity, for example our skin, right? So there are number of types of simple epithelium tissue. For example, first is squamous, cuboidal, then columnar, then columnar cells bearing cilia, and then granular epithelium, right? So let us see one by one. You have to see only 4 types in each tissue: location, function, structure and diagram, right? So first we will see सिंपल एपिथेलियम, जिसमें फर्स्ट टाइप है स्क्वेमस, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटन सेल्स with irregular boundaries. That cell are arranged with other like a tiles, right? जैसे टाइल्स में सीमेंट मटेरियल से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वैसे सेल अरेंज हुए होते हैं. सेल्स आर ऑलमोस्ट हेक्सागोनल एंड possess clear nucleus in the center, right? Then what about location? There are multi-location of simple epithelium or squamous epithelium tissue. These tissue form the outermost layer of skin of the frog, then capillary alveolus glomeruli, then outer layer of skin of lungs, nephrons of kidney, right? There are many location of this tissue. Then function, main function of tissue to protect the inside tissue, right? उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट? द सेल्स ऑफ टिश्यू समटाइम हैव माइक्रोविलिस ऑन द फ्री एंड ऑफ एब्सॉर्प्टिव ट्यूब. देन लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम? लोकेशन, that is the ducts of glands, right, and tubular part of kidney. In ovary and testes they are called as a germinal epithelium. कि ओवरी और टेस्टिस में उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम. उसके बाद फंक्शन, देर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन डूइंग दिस टिश्यू: सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस, देन एक्सक्रिएशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट? सेकेंड, और उसका जो डायग्राम है वो आपको यहाँ दिया है. यू कैन सी दिस डायग्राम. फ्लैटन सेल जिसमें होते हैं दैट इज कॉल्ड स्क्वाटमस एपिथेलियम टिश्यू. देन क्यूबॉइडल टिश्यू जिसमें ये जो सेल है वो थोड़ा बहुत बड़े होते हैं कंपेयर टू स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स. देन कॉलमर सेल्स जो होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, और कॉलमर सेल्स और क्यूबॉइडल सेल्स पर जो सीलिया बियरिंग सीलिया होता है दैट इज कॉल्ड columnar cells bearing cilia, right? So columnar epithelium composed of a single layer of tall and slender located at the base. Free surface may have microvilli. Then inner end are narrow and free and are broad and polygonal. Then location, lining of stomach and intestine. Function, absorption and secretion. जो अगली वाली टिश्यू कर रही थी वही फंक्शन करेंगे, right? Then ciliated epithelium. If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, that called ciliated epithelium, right? You can see in figure. And their function, move to particles and mucus in a specific direction over the epithelium. And उसका लोकेशन क्या है? आपको लोकेशन पॉइंट नहीं दिया है, so you can remember inner surface of hollow organ that is called bronchioles, then fallopian tubes, like ऐसे जो organ होते हैं उसमें होते हैं. Then what about granular epithelium? Granular epithelium
some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. There are mainly two types, glandular epithelium, unicellular and multicellular. Unicellular के example है goblet cells of intestine, right, alimentary canal, and multicellular glandular epithelium का example है salivary glands. So you can remember on that way. Then on the basis of mode of pouring of that secretion, glands divide into two categories, exocrine and endocrine. What about exocrine? Exocrine glands secretes mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzyme and other cellular products. आपको सबके बारे में पता है बट ईयरवैक्स मीन्स व्हाट, कि हमारे जो ईयर होते हैं और जहाँ हॉल होता है वहाँ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ वैक्सी ग्लैंड्स होती हैं जिससे वैक्स लाइक मटेरियल सिक्रेट होता है और जो भी पार्टिकल्स होते हैं वहाँ स्टिक हो जाते हैं जिससे वो हमारे ईयर में अंदर ना जा सके, और अंदर ना जाए तो हमारे ईयर को कोई नुकसान नहीं होता है, राइट. तो इसीलिए ईयर वैक्स का सिक्रेशन होना ज़रूरी है एंड दिस प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स. व्हाट अबाउट endocrine gland? Endocrine gland do not have any duct, and then product that is called hormone, and hormone secreted directly into fluid bathing the gland, right? Okay, then we talk about compound epithelium. Compound epithelium have two types, stratified epithelium and ट्रांजिशनल एपिथेलियल, राइट. फर्स्ट जो टाइप्स है वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल एंड सेकेंड इज ट्रांजिशनल एपिथेलियल. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, आपको बुक में ये टाइप्स नहीं दिए हैं डिटेल में, सो आपको थोड़ा बहुत ही याद रखना है इसके बारे में. Stratified epithelium cells forming different layer are not alike. It possesses more than one layer arrangement, so it is found in multi-layer form. आप यहाँ देख सकते हो ये मल्टी लेयर होते हैं, सी 1 2 3 4 5, राइट, वैसे लेयर है, मल्टी लेयर सेल्स होते हैं. एंड द सेल ऑफ लोअर मोस्ट लेयर आर अरेंज ऑन बेसल मेम्ब्रेन, इट इज नोन एज मालपीकियन लेयर. Due to friction or wear and tear, cells of free surface become flattened and get eliminated, while cell or lower side are added towards new cell by division. कि जब बेजल पार्ट के जो सेल्स, बेजल पार्ट पे जब सेल ऐड होते हैं तो ऊपर के जो सेल होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं. सो सेल्स which are pushed outside become flattened and become non-living by losing protoplasm cell get deposition of keratin. उससे क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ कैरोटीन. कैरोटीन क्या है, वन काइंड ऑफ प्रोटीन, right. So outer surface of stratified epithelia possesses squamous epithelium, and stratified epithelium may contain keratin or may not contain keratin. उसका लोकेशन है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, बहुत सारे लोकेशन है. फॉर एग्जांपल ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, देन लिविंग ऑफ रेक्टम, बकल कैविटी, टंग, फेरिंग्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, देन इसोफेगस, देन वजाइना ऑफ ममल्स, राइट. उसके बाद फंक्शन. फंक्शन, इट इज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्सॉर्प्शन. लिमिटेड रोल है सिक्रेशन एंड एब्सॉर्प्शन का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, राइट. उसके बाद आती है ट्रांजिशनल एपिथेलियल. ट्रांजिशनल एपिथेलियल इज स्ट्रेटिफाइड टिश्यू made up of multiple cells layers where the cell constitute the tissue can change shape depending on the
डिस्टेशन इन द ऑर्गन एंड दे आर इन द ट्रैक्स ऑफ, उसका लोकेशन आपको दिया है, लोकेशन ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियल tracts of excretory organ and they do not possess any Malpighian layer, right? So ये मैंने थोड़े स्पीड में आपको एपिथेलियल टिश्यू समझाया है बिकॉज हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, अभी जो रिमेनिंग चैप्टर है वो पढ़ने हैं, राइट? उसमें से जो मैं पढ़ाऊँ वही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, मतलब वही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं बिकॉज चैप्टर हम सभी चलाएंगे और उसमें से मेन पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वो मेन पॉइंट आपको कम्प्लीटली प्रिपेयर करने हैं। सो 18 चैप्टर सिलेबस में होंगे, राइट? जो भी रिड्यूसिंग है वो नहीं होगा और जो भी टॉपिक रिड्यूस है कोई चैप्टर में वो रिड्यूस टॉपिक भी पूछा नहीं जाएगा, राइट? जो रूटीन में है रिड्यूस के अलावा जो भी है टॉपिक हो या चैप्टर हो वो सभी चैप्टर पूछे जाएंगे, ठीक है? उसके बाद आती है कनेक्टिव टिश्यू। नाउ वी विल सी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स व्हाट? दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, राइट? उसके स्ट्रक्चर में बहुत कम नंबर के सेल्स होते हैं। दिस टिश्यू हैज़ लेस नंबर ऑफ सेल्स. इट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ इंटरसेल्युलर फ्लूइड. दिस फ्लूइड इज क्रिएटेड बाय सेल्स ऑफ टिश्यू. न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मीन्स व्हाट कि नए सेल पहले जो पुराने सेल होते हैं उनमें से डिवाइड होके बनते हैं, राइट? सेल्स ऑफ दिस टिश्यू secrete structural protein fibers except blood tissue. It is called collagen or elastin. There are two types of fiber से ये टिश्यू फॉर्म होती है, कोलाजन एंड सेकेंड इज elastin. And this fiber provides strength, flexibility and elasticity. These cells also secrete polysaccharides which get deposited between cells and fiber and matrix, राइट? सो कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एंड दीज 3 टिश्यू हैव देयर ओन सब टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी loose connective tissue. What is loose connective tissue? They are bound loosely with each other, right? There are 2 types of loose connective tissue, areolar connective tissue and adipose tissue. First we will see areolar connective tissue. That location found in the gastrovascular cavity, peritoneum and in mesentery surrounding the intestine, in the wall of arteries and at many other places, right? उसका लोकेशन आपको समझ में आ गया होगा. देन स्ट्रक्चर की बात करें तो मैट्रिक्स नेटवर्क ऑफ फाइबर, दे आर कोलाजियस एंड आर ऑफ प्रोटीन. यहाँ आप उसका डायग्राम देख सकते हो, राइट? कोलाजन फाइबर, दिस इज कोलाजन फाइबर. देन आपको इलास्टिन फाइबर नहीं दिया है. देन फाइबर, देर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, यहाँ आपको दिया है. देर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, वाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर. वाइट फाइबर की हम बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक. दे कैन टॉलरेट स्ट्रेच एंड प्रेशर. वाइट फाइबर आर वेवी, न्यू ब्रांचेड एंड अरेंज इन ग्रुप, राइट? थोड़ा स्पीड में मैं आपको बता रही हूँ तो अच्छे से समझना, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट 18 चैप्टर. There are many chapters remaining, so we study all chapter, but उसमें मेन टॉपिक है वो हम देखेंगे और वही आपको एग्जाम में आएगा. सो अच्छे से सभी टॉपिक को लर्न करना, राइट? उसके बाद येलो फाइबर्स, दे आर नॉन ब्रांचेड, सिंगल एंड मेड अप ऑफ इलास्टिन मटेरियल. जो वाइट फाइबर थे वो मेड अप ऑफ कोलाजिन मटेरियल, राइट? एंड not bear stretch and pressure. दूसरा, they have many types of cell like fibroblast, macrophage and master cells. फाइब्रोब्लास्ट की हम बात करें तो इरेगुलर इन शेप. आपको इतना डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, सो यू कैन
learn that way, right? So fibroblast irregular in shape, flat, right, and possess processes, and they form protein fiber like collagen and elastin. Then macrophage, irregular shaped cells, that phagocytosis of bacterial particles means what? They perform phagocytosis of bacteria, large particles and decomposed material, कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको फेगोसाइट कर देते हैं जिससे हमको इन्फेक्शन नहीं लगता. एंड व्हाट अबाउट मास्ट सेल? दे स्टोर इन्फ्लेमेटरी मटेरियल. जो इन्फ्लेमेटरी मटेरियल है वो स्टोर करता है लाइक हिपेरिन, हिस्टेमाइन, सेरोटोनिन, राइट. जब हमको एलर्जी होती है तो ये मटेरियल प्रोड्यूस होता है, तो वो मटेरियल स्टोर करते हैं मास्ट सेल्स. देन व्हाट अबाउट एडिपोज टिश्यू? Adipose tissue, another types of loose connective tissue which is located mainly beneath the skin, and the cells of this tissue are specialized store fat. कि हम जो फूड लेते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होता है वो फैट के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट. आपको डायग्राम यहाँ दिया है तो उसी के हिसाब से आपको याद रखना है. देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अनदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें ये जो है वो एग्जाम्पल आपको दिए हैं. दिस इज एग्जाम्पल, राइट. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट होता है. दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, राइट. उसके एग्जाम्पल टेंडम. Tendon means what? Skeleton muscles bind to bones, that is called tendon, and ligament means what? Two bone bind with each other, that is called ligaments, right. उसमें another types है dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue. This is dense regular tissue because आप देख सकते हो कि कोलेजन फाइबर अच्छे से अरेंज हुए हैं इस टिश्यू में, और ये जो कोलेजन फाइबर है वो इरेगुलर है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड डेंस इरेगुलर टिश्यू, राइट. उसके बाद आपको दिया है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड. और ब्लड तो आप 18 चैप्टर में डिटेल में पढ़े ही हो, राइट. सो देखते हैं कार्टिलेज फर्स्ट. कार्टिलेज टिश्यू, then bone tissue. Cartilage tissue made up of chondrocyte cells which are enclosed in small cavity within matrix which is secreted by them. Most of cartilage in invertebrate embryo are replaced by bone in adults. उसका लोकेशन हम अगर बात करें तो लोकेशन में प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स, हैंड्स इन एडल्ट्स, राइट. बहुत सारे लोकेशन है जिसमें कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होती है, राइट. कार्टिलेज टिश्यू अनदर डिवाइड इन 4 सब टाइप, दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज. आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो आपको याद रखना हो तो रख सकते हो, अगर नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, ठीक है. सो हाईलाइन कार्टिलेज, देन वाइट फाइबर कार्टिलेज, देन येलो इलास्टिक कार्टिलेज, देन कार्टिलेज फ्यूज विथ कैल्शियम. ओके, सो ये हो गया कार्टिलेज टिश्यू. देन बोन टिश्यू. आपको कार्टिलेज टिश्यू यहाँ डायग्राम में दी है. दिस इज कार्टिलेज टिश्यू एंड दिस इज बोन टिश्यू. थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें. यहाँ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स दिए हैं अच्छे से, एंड यहाँ एक ही सेल में आउटर साइड सेल अरेंज हुए हैं, राइट. सो बोन सेल्स, दैट इज बोन टिश्यू, इज ऑल्सो स्केलेटल टिश्यू. It is solid, brittle, inelastic. It has ocean fluid. कि जो भी बेजल पार्ट होता है वो मेड अप ऑफ ओशियन फ्लूइड, राइट. ओशियन फ्लूइड एंड डिफरेंट सॉल्ट्स इन इट्स मैट्रिक्स. के मैट्रिक्स में सॉल्ट्स होता है और ओशियन फ्लूइड होता है, एंड इट्स सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, राइट. एंड उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू कार्टिलेज टिश्यू. इट गिव्स स्ट्रेंथ टू बोन. It is a main tissue of body. It gives structural frame of the body. Bone support and protect softer tissue organ. The bone cells are present in space called licuny limb bone, such as
long bone such as long bones of legs serve weight bearing function. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movement. So the bone marrow in some bones is the site of production of blood cells. Right? जो भी bone marrow है वो sites of production of bone blood cells बन जाते हैं. Right? In bones of mammal, many structure like pillars are seen. It is called Harvardian system. यहाँ आप देख सकते हो सी ये राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड है, वो क्या बोलते हैं उसको? हार्वर्डियन सिस्टम. इन इस हार्वर्डियन सिस्टम मैनी लेमिली ऑफ बोन मटेरियल फॉर्म concentric ring around large longitudinal canal. राइट, कि ये जो है वो रिंग फॉर्म होती है अराउंड लार्ज लॉन्गिट्यूडनल कैनाल विद इन द बोन टिश्यू एंड दिस कैनाल आर कॉल्ड हावर्सियन कैनाल. राइट, सो इसी के साथ कार्टिलेज टिश्यू एंड बोन टिश्यू खत्म होता है. और ब्लड टिश्यू की हम बात करें तो ब्लड टिश्यू पजेस प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा. आप डिटेल में उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर, उसके वॉल्यूम के साथ डिटेल में 18 चैप्टर में पढ़े हो, वही आपको यहाँ याद रखना है. बट इतना डिटेल में यहाँ नहीं दिया है, सो यू कैन फॉरगेट इट. राइट, सो ये हो गई कनेक्टिव टिश्यू. एंड आगे हम पढ़े एपिथेलियल टिश्यू. ये दो टिश्यू खत्म हो गए. उसके बाद आपको है मसल्स टिश्यू एंड नर्व टिश्यू. और उसके बाद एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग पढ़ना है. और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होगा. सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी मसल्स टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड स्टार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म. टिल दैट, थैंक यू.